प्राइम नून एट 3 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा और बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बेहद महत्वपूर्ण खबर के साथ। अनुच्छेद 370 का यह मामला है, सुप्रीम कोर्ट में 15वें दिन की सुनवाई जारी है। और आपको बता दें, सांसद मोहम्मद अकबर लोन के भाषणों पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। सुप्रीम कोर्ट ने अकबर लोन से हलफनामा मांगा है। इस वक्त का बेहद अहम अपडेट आपको दे रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अकबर लोन से हलफनामा मांगा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, or if you want to extend the provisions of the Constitution of India, forget about 371 B1 and 2. Look at D. If you want to extend the Constitution of India in respect of matters which are in the instrument of accession, outside of those matters, you have to consult, otherwise it will take concurrence. And how does the President of India act? On the inner advice of the Council of Ministers. The President is not acting in his individual capacity. It is the Council of Ministers which will decide, not Parliament. The Governor acts on the aid and advice of the Council of Ministers. It is the Council of Ministers at the other end which will decide, not the legislature. It was to ensure that there is slow integration of Jammu and Kashmir into India through a process that is easy, through a process that will allow the executives communicating with each other to make sure that the Constitution of India as applied to the Constitution of Jammu and Kashmir is put into effect. Which is why the CO in 52, in 54, that's the background. Once we decided on the list that this is the entry in the list on which a law can be made, and two executives agreed on it, a law is made and it will be applied. That's the procedure, Malaj. Nothing to do with how they have interpreted the Constitution. That's how it happened all the time. Which is why, if your Lordships will remember at the outset, I said this is an exercise of executive power. It is not even exercise of legislative power. Far be it some quasi, some ancillary constituent power. Doesn't exist. Millers, I am asked this one question for which, Millers, if you have an answer, Millers, I certainly don't have an answer. Millers, throughout, Gopalaswamy Iyengar, who was part of the drafting committee and who introduced the bill, understood 370 as we have argued before your Lordships. Exactly that. From 1950 to 5th of August 2018, no member of parliament, no member of parliament, no individual in the public space said otherwise. Nobody said it. Every interpretation of the Constitution as reflected in the debates in the Legislative Assembly and in Parliament interpreted the Constitution as Iyengar interpreted it and as we have argued before your Lordships. There has never been a dissent. When the Government of India files an affidavit in this court, it's the same thing, except they say that now through this process, we have substituted the Constituent Assembly with the Legislative Assembly. They have understood 370 in the same way. Now in the argument, not part of their affidavit, not part of their pleadings, they say, no, there is some plenary power. Your Lordships are not sitting here in an advisory capacity to tell them as to what 370 means. We are, Millers, testing the action of the Union. We are not having some academic exercise of the interpretation of सीधी प्रोसीडिंग्स इस वक्त देख रहे हैं जहां वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल यहां पर दलीलें पेश कर रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ा अपडेट सामने आया है जहां
सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा एक्शन लिया है, अकबर लोन से हलफनामा मांगा है, जिसकी सुप्रीम कोर्ट में अपील रूट्स इन कश्मीर के प्रवक्ता अमित रैना ने की थी। और इसी पर ज्यादा बातचीत करने के लिए अमित रैना खुद हमारे साथ सीधे जुड़ गए हैं। अमित रैना जी, न्यूज 18 पर आपका बहुत स्वागत करती हूं। और जो सुप्रीम कोर्ट ने अब ये संज्ञान लिया है, मंगलवार तक हलफनामा पेश करने को अकबर लोन को कहा है, आपकी पहली प्रतिक्रिया इस पर मैं चाहूंगी। देखिए, हमारी तो इच्छा थी कि सुप्रीम कोर्ट अकबर लोन के पिटीशन को ही खारिज कर दे, मगर फिर भी उच्चतम न्यायालय ने अपने संज्ञान में लेते हुए सही कदम उठाया है और हम उसका स्वागत करते हैं। निरंतर और बार बार प्रयास रहा है जम्मू कश्मीर के नेताओं का, खासकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के और पीडीपी के, कि वो दिल्ली में एक बात करते हैं और कश्मीर में एक बात करते हैं। और कश्मीर में पिछले 32 साल से हुए जो आतंकवाद है, कहीं ना कहीं उसको ऐसे भड़काऊ भाषण से, ऐसे पाकिस्तानी समर्थक भाषणों से कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता था। तो ये एक बहुत ही स्वागतनीय कदम है जो सुप्रीम कोर्ट ने लिया है, और अब देखना है कि अकबर लोन जी कैसे सर्टिफिकेट को फाइल करते हैं। बिल्कुल। और जिस तरीके से अमित रैना जी ये प्रोसीडिंग सुप्रीम कोर्ट की चल रही है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सवाल सिर्फ अभी अकबर लोन से ही किया गया, बीते दिनों की सुनवाई को अगर देखा जाए तो कुछ तीखे सवाल यहां पर केंद्र सरकार से भी पूछे गए हैं। उसको आप उस पूरी सुनवाई को किस तरीके से देख रहे हैं जो अभी तक सुप्रीम कोर्ट में हुई है? नहीं, देखिए, सुप्रीम कोर्ट का हक है तीखे सवाल पूछना, क्योंकि एक ग्रे कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन है और इसको लेकर सवाल जवाब तलब होने चाहिए। और दोनों साइड से डिफिकल्ट क्वेश्चंस पूछे गए हैं, मगर जो मैं एक बात और वापस नोटिस में लाना चाहूंगा कि पिछले हफ्ते कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ने, चंद्रचूड़ जी ने, मुझे लगता है दबी भाषा में कहें या साफ भाषा में कह दिया है कि 35A कैसे मानव अधिकारों का हनन करता था, मौलिक अधिकारों का हनन करता था, और राइट टू इक्वलिटी, राइट टू एम्प्लॉयमेंट, राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू जस्टिस का हनन करता था। तो कहीं ना कहीं उस ऑब्जर्वेशन से एक बात तो क्लियर हो जाती है कि 35A को लेकर सुप्रीम कोर्ट की क्या विचार। बिल्कुल। अगर हम अकबर लोन के मामले की बात करें तो जिस तरीके से यहाँ पर आरोप लगे हैं, और इससे पहले भी कुछ मीडिया अखबारों ने इस कवरेज को छापा था जब वो विधायक थे और उस दौरान विधानसभा में उन्होंने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए थे और सार्वजनिक तौर पर माफी मांगने से भी इसको मना कर दिया था। और यही मुख्य याचिकाकर्ता भी है सुप्रीम कोर्ट में, और उन्हीं की पैरवी वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आप इस चीज को चैलेंज कर रहे हैं जो निकलकर सामने आ रहा है इस पूरे मामले में। जो अभी आपने यहां पर अर्जी लगाई है सुप्रीम कोर्ट से हलफनामा पेश करने की, और सुप्रीम कोर्ट ने उस पर आदेश भी जारी कर दिया है, क्या ये मान लिया जाए कि आप इस जो मुख्य याचिका करता है उन्हीं की दलील को आप चैलेंज कर रहे हैं, उन्हीं की याचिका को आप कंप्लीटली चैलेंज कर रहे हैं यहां पर? देखिए, मैं उनके इंटेंशन को चैलेंज कर रहा हूं, उनके मंशा को चैलेंज कर रहा हूं, क्योंकि अकबर लोन ने एक बार पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे नहीं लगाए थे। आपको याद रखना पड़ेगा कि जम्मू कश्मीर असेंबली में भारत माता की जय के विरोध में, भारत माता की जय के विरोध में अकबर लोन ने पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए। उसके बाद बाहर मीडिया से निकलकर उन्होंने कहा, मैं अपने स्लोगन की माफी नहीं मांगूंगा, जो पाकिस्तान को बुरा भला कहेगा मैं उसको गालियां दूंगा। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि मैं कश्मीरी हूं या मैं हिंदुस्तानी हूं या मैं पाकिस्तानी, मुझे पता नहीं, मगर मैं मुसलमान जरूर हूं। तो उन्होंने फिर दूसरा अपने हिंदुस्तानी होने पे, भारतीय होने पे सवाल चिन्ह लगा दिया, और ये रिपीट ऑफेंडर है। उसके बाद 2019 में जब ये इलेक्शन लड़ रहे थे तो निरंतर बार बार अपने पॉलिटिकल रैलीज में पाकिस्तान समर्थन बात कर रहे थे, पाकिस्तान जिंदाबाद बात कर रहे थे। तो कहीं ना कहीं हमें ये शंका हो रही थी, और अभी भी शंका है कि क्या अकबर लोन, क्योंकि देखिए, अगर आप देखें सबसे कड़ी प्रतिक्रिया 370 को हटाने को लेकर पाकिस्तान की आई। सबसे ज्यादा अगर विश्व भर में किसी ने 370 को लेकर बात करी, पाकिस्तान ने करी। तो क्या अकबर लोन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का पक्ष तो नहीं रख रहे सुप्रीम कोर्ट में? तो जो व्यक्ति भारत के आईन में विश्वास नहीं रखता, जो व्यक्ति भारत के न्यायपालिका में विश्वास नहीं रखता, जो भारत के संसद में विश्वास नहीं रखता, क्या उसको मौलिक अधिकार मिल सकता है कि वो भारत के संसद के द्वारा एक पारित विधायक को चैलेंज कर सके? तो हमारा तो मूल सवाल यही था। सुप्रीम कोर्ट ने इसको अपने इंटरप्रिटेशन में लेके कल उनसे कंफर्मेशन, एफिडेविटिक कंफर्मेशन रूप में मांगी कि क्या वो अपने आप को
भारतीय समझते हैं और वो जम्मू कश्मीर को इस देश का अभिन्न अंग समझते हैं। तो कल अगर अकबर लोन एफिडेविट देते हैं तो शायद कहीं ना कहीं उनकी मंशा पता चल जाती है, नहीं देते हैं तो सच्चाई पता चल जाती है। साथ ही अमित रैना जी, ये तो बात हो गई अकबर लोन की, लेकिन इसके इतर बहुत सी जो राजनीतिक पार्टियां हैं, स्थानीय राजनीतिक पार्टियां मैं कहूंगी जम्मू कश्मीर में, वो भी इस चीज का समर्थन कर रही हैं कि अनुच्छेद 370 जम्मू कश्मीर से जब हटाया गया तो उसे असंवैधानिक प्रक्रिया से हटाया गया, जो एक ज्यादती थी जम्मू कश्मीर की जनता के साथ। आप कश्मीरी हैं और जिस तरीके का दंश कश्मीरी पंडितों ने जम्मू कश्मीर में झेला है, उसके बाद इस तरीके के आरोपों को आप कैसे देखते हैं? देखिए, एक संवैधानिक प्रक्रिया पे प्रश्न उठाना हर किसी का संवैधानिक और मौलिक अधिकार है। उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना जजमेंट सुनाएगी। मगर अगर आज आप देखें तो पिछले 70 साल में जम्मू कश्मीर में अनेकों बार बहुत चेंजेस लाए गए और अनेकों बार जो आज महेश जेठमलानी भी कह रहे थे और हमारे वकील भी कह रहे थे कि अगर आप 1950 से लेकर कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर देखें, वो सारे कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से पूछकर नहीं लिए गए, उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली या सरकार का कंकरेंस लिया गया। तो 70 साल में जो आपके हक में फैसला था उसमें तो आपने कहा कि सरकार का कंकरेंस चल जाएगा, सरकार की हामी चल जाएगी। आज आपको एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल ऑर्डर आया है जो आपको आपके पक्ष में नहीं लगता, तो आपने एक नया प्रावधान निकालिए कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। तो इसको लेकर भी आज महेश जेठमलानी और हमारे वकील विमल जी ने बात रखी है सुप्रीम कोर्ट में। मुझे लगता है कि बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके अलावा 370 के आड़ में निरंतर मानव अधिकारों का हनन जम्मू कश्मीर में हो रहा था, तो कहीं ना कहीं जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है उसको लेकर भी सवाल है कि जम्मू कश्मीर में क्या 370 बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को अप्लाई नहीं होने देता है। तो ये काफी सवाल है और मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट अगर मैं कोई प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की, मगर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट देश का हित, जम्मू कश्मीर के निवासियों का हित, जो वंचित समाज है जम्मू कश्मीर के उनका हित, महिलाओं का हित देखकर ही कोई निर्णय 370 पे लेगा। बिल्कुल अमित जी, आपने सही कहा कि सुप्रीम कोर्ट के विचाराधीन ये मामला है, सब जुडिशियल है, तो इस पर बहुत ज्यादा टिप्पणी करना शायद हमारे लिए सही नहीं होगा, लेकिन इसके कई और पहलू हैं जिस पर चर्चा जरूर की जा सकती है। अमित जी, कहा यह भी जा रहा है जो विपक्षी पार्टियां हैं उनकी तरफ से कि सत्तारूढ़ दल की तरफ से अपने जो उनका राजनीतिक मकसद था उसे साधने के लिए अनुच्छेद 370 को जम्मू कश्मीर से हटाया गया। गवर्नर रूल के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे हैं कि 3 साल से ज्यादा का टाइम स्पैन नहीं हो सकता गवर्नर का, उसके ऊपर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस बीच विधानसभा चुनाव कराने को लेकर भी कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं, उस पर आपकी संस्था का क्या कहना है, क्या मानना है? देखिए, हाथ कंगन को आरसी क्या, 2019 के बाद और 2019 से पहले कश्मीर के हालातों में क्या तब्दीली आई है ये विश्व ने देख लिया, जग जाएगा। पत्थरबाजी में ऑलमोस्ट 0 पे पहुंच गए हैं। 2019 से पहले जम्मू कश्मीर के स्कूल साल में 9 दिन खुलते थे, बाकी दिन या बंद होता था या पत्थरबाजी होती थी। पिछले 4 साल में स्कूल 9 दिन के लिए भी बंद नहीं हुए हैं। इसके अलावा पर्यटकों का नंबर मल्टीफोल्ड बढ़ गया है। जम्मू कश्मीर में इन्वेस्टमेंट आ गई है। जो जम्मू कश्मीर 6 बजे सो जाता था, आज देर तक इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती, तो हर क्षेत्र में कहीं ना कहीं आपको बदलाव और प्रगति दिखती है। बिल्कुल मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% नॉर्मल हो गई होगा, बट बहुत अत्यधिक फर्क आपको दिखता है 2019 और 2019 के बाद। जहां तक बात है इलेक्शन की, 1990 के बाद अगला इलेक्शन 6 साल बाद हो 1996 में। हालांकि मेरा अपना विचार है कि डेमोक्रेसी में इलेक्शन अति आवश्यक है, उसको होने देना चाहिए, मगर ग्राउंड सिचुएशन की समीक्षा मेरे अधिकार में नहीं है। इसके लिए जो ऑर्गेनाइजेशन है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है और भारत सरकार है, और उनकी समीक्षा में अगर उनको लगता है कि इलेक्शन के अब माहौल ठीक है तो उनको कराना चाहिए। मैं हमेशा इलेक्शन के पक्ष में रहा हूं और जितनी जल्दी इलेक्शन हो सके सरकार को करना चाहिए।
लेकिन बार बार सवाल यही उठाए जा रहे हैं अमित जी विपक्षी पार्टियों के द्वारा कि एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये क्लेम करते हैं कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई है, गृह मंत्री ये क्लेम करते हैं कि जम्मू कश्मीर की तस्वीर बदल गई है, आंकड़े सुप्रीम कोर्ट में गिनाए जाते हैं कितनी कमी आई है, पत्थरबाजी में घुसपैठ की जो घटनाएं हैं उनमें कितनी कमी आई है। एक तरफ ये सब चीजें कही जाती हैं, दूसरी तरफ ये कहा जाता है कि हालात नॉर्मलाइज हो जाएंगे तो फिर चुनाव हो जाएंगे और फिर चुनाव आयोग पर इसे ढकेल दिया जाता है। इस पर आपका क्या टेक है? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इलेक्शन होना चाहिए। मुझे जो जहां तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है और जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है कि ये चुनाव फेजेस में वो करना चाहते हैं, सारे चुनाव एक साथ नहीं करना चाहते। जम्मू कश्मीर में 3 इलेक्शन आज की डेट में ड्यू हैं। एक पंचायत के इलेक्शन ड्यू है, दूसरा अर्बन बॉडीज के इलेक्शन ड्यू है और तीसरा लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन ड्यू है। तो मुझे लगता है और जो सरकार संकेत दे रही है अपने प्रेस रिलीजेस के थ्रू, अपने पार्टी के स्पोक्स पर्सन के थ्रू कि ये तीनों स्टेजेस में इलेक्शन होंगे, पहले पंचायत के, उसके बाद अर्बन बॉडीज के और उसके बाद लेजिस्लेटिव असेंबली के। मैं एक जम्मू कश्मीर के नागरिक के दायित्व से बिल्कुल सरकार से अर्जी करना चाहूंगा कि तीनों के तीनों इलेक्शन जितनी जल्दी हो सके करा देने चाहिए। अमित जी आपने यहां पर कहा कि जम्मू कश्मीर के नागरिक होने के नाते आप ये चाहते हैं कि जम्मू कश्मीर में इलेक्शन जल्द से जल्द हो, लेकिन कुछ ऐसी राजनीतिक ताकतें हैं जिनसे अभी बीते दिनों हम बात कर रहे थे, क्योंकि लगातार सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है और निरंतर उनसे बातचीत हमारी टीवी पर होती रहती है। बहुत सी विपक्षी ताकतें ऐसी हैं जो ये मानती हैं कि जम्मू और कश्मीर के बीच में भी रिफ्ट पैदा करने की कोशिश की जा रही है। हवाला यह दिया जाता है कि G20 कश्मीर में कराया गया, कश्मीर की तस्वीर बदल रही है, कश्मीर में जितने सैलानी हैं वो पहुंच रहे हैं और जम्मू को कहीं ना कहीं नजरअंदाज किया जा रहा है। तो जम्मू कश्मीर के बीच में भी एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा करने की कोशिश इन दूसरी राजनीतिक पार्टियों की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, जम्मू और कश्मीर के बीच कॉन्फ्लिक्ट हमेशा से जो स्टेट की पॉलिटिकल पार्टीज रही उन्होंने किया है। उन्होंने हमेशा जम्मू को एक दृष्टिकोण से देखा और कश्मीर को एक दृष्टिकोण से देखा है। और हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि जम्मू के मुकाबले वादी में कश्मीर में हालात ज्यादा खराब थे, तो सरकार का कहीं ना कहीं फोकस थोड़ा बहुत ज्यादा कश्मीर वादी में होगा, क्योंकि वहां समस्या ज्यादा अधिक थी, वहां समस्या कंट्रोल करने की थी। जम्मू को लेकर ये आज, क्योंकि इनकी राजनीति हमेशा दोनों डिविजन्स को, तीनों डिविजन्स, आज लद्दाख हमारे साथ नहीं है, तीनों डिविजन्स को आपस में डिवाइड करके डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी। आज कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार दोनों प्रांतों में, दोनों प्रोविंसेस में बराबर का ध्यान दे रहा है। जम्मू की अपनी समस्याएं हैं, जम्मू के अपने इन्वेस्टमेंट रूट हैं, तो जो जम्मू के इन्वेस्टमेंट रूट है जिसमें मैन्युफैक्चरिंग इंपॉर्टेंट है, जिसमें रिलीजियस टूरिज्म इंपॉर्टेंट है, उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और कश्मीर में जहां पे मैन्युफैक्चरिंग उतनी सक्सेसफुल नहीं हो सकती, जहां पे नेचर का ख्याल रखना पड़ता है, नेचुरल ब्यूटी का ख्याल रखना पड़ता है, एनवायरमेंट का, उसमें जो स्ट्रैटेजी सरकार की होगी वो अन्य रूप में होगी। तो वो डिवीजन हमेशा रहेगा स्ट्रैटेजिक फ्रंट पे। ये राजनीतिक पार्टी हमेशा चाहती है कि जम्मू और कश्मीर के लोग एक साथ ना रहें, हमेशा दोनों डिवीजन में सेपरेशन रहे, ताकि वो अपनी वोट बैंक पॉलिटिक्स कर सकें। तो कहीं ना उनको ये विफल होता हुआ भी दिख रहा है और इसलिए शायद ये ऐसी बातें कर रहे हैं। एक आखिरी सवाल अमित जी, जो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई चल रही है, आपने अर्जी लगाई थी हलफनामा पेश करने वाली, वो सुप्रीम कोर्ट ने मान ली है, मंगलवार तक हलफनामा पेश करने के लिए कहा गया है। आगे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं और कितने आशान्वित हैं इस सुनवाई को लेकर? नहीं, देखिए, अगर हम सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लेकर गए हैं कि 370 का खारिज होना एक स्वागतनीय कदम है और हम उसका समर्थन करते हैं, तो इसी उम्मीद से गए कि कहीं ना कहीं हमारी बात सही है और सुप्रीम कोर्ट इस बात को मानेगी। हमारे पक्ष से और सरकार के पक्ष से और अन्य याचिकर्ताओं के पक्ष से मुझे लगता है कि काफी सॉलिड और वैलिड पॉइंट दिए गए हैं। और आज जैसे एक वकील कह रहे थे कि ह्यूमन राइट्स का वायलेशन एक प्रोसेस से बड़ा नहीं हो सकता, मानव अधिकारों का जो उल्लंघन बार बार कश्मीर में होता जा रहा है, माइनॉरिटी के साथ जो निरंतर तिरस्कार किया जा रहा है, वो एक प्रोसेस से बड़ा नहीं हो सकता। तो सुप्रीम कोर्ट को उसको संज्ञान में लेना पड़ेगा और इंश्योर करना पड़ेगा कि राइट टू लाइफ, राइट टू लिबर्टी, राइट टू जस्टिस एंड राइट टू इक्वलिटी सबसे इंपॉर्टेंट है 370 से ज्यादा। बिल्कुल अमित रैना जी, और इसी के साथ न्यूज 18 को अपना महत्वपूर्ण समय देने के लिए, अपने विचार हमारे साथ शेयर करने के लिए, जनता तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
तो ये थे अमित रैना, रूट्स एंड कश्मीर के प्रवक्ता, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी लगाई थी अकबर लोन के खिलाफ और हलफनामा दाखिल करने के लिए उन्होंने अर्जी लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस अर्जी को स्वीकार करते हुए मंगलवार तक का समय अकबर लोन को दिया है और मंगलवार को अपना हलफनामा पेश करने का आदेश जारी किया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं खबरों में। और शिया आलिम आगा बाकर अल हुसैनी की गिरफ्तारी के खिलाफ गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग नाराज हैं। वहां पिछले दिनों से बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। लोग सड़कों पर उतरकर पाकिस्तान के खिलाफ गुस्से का इजहार कर रहे हैं। लोग उग्र हैं और वहां स्थिति गंभीर हो सकती है। लोग इतने खफा हैं कि अब कारगिल चलो, लद्दाख चलो के नारे लग रहे हैं। कुछ लोगों ने खुलकर भारत में विलय की मांग करनी भी शुरू कर दी है। काराकोरम हाईवे खोलने की मांग भी की जा रही है। गौरतलब है कि पाकिस्तान गिलगिट बाल्टिस्तान की उपेक्षा करता है। यहां किसी तरह का विकास नहीं हुआ है। बिजली, शिक्षा और मूलभूत सुविधाओं की कमी को लेकर आवाज उठती रहती है, जबकि यूटी लद्दाख विकास के पथ पर अग्रसर है। गिलगिट बाल्टिस्तान के लोग भी लद्दाख में विकास की प्रशंसा कर रहे हैं। नहीं जाना हमने पंजाब, नहीं जाना हमने सिंध। अगर तुम्हें तकलीफ है इस मुतनाज़ा खित्ते के शहरी को, तुम अपने मुल्क में आने के लिए रास्ते में टाउट पैदा कर दो, दार एल तांगिर कोहिस्तान तक। हमें नहीं जाना तुम्हारे मुल्क में। खोलो करगिल का रास्ता, खोलो हमारा तारीखी रास्ता, हम जाएंगे। मैं तो गिलगित बाल्टिस्तान का हूँ, पाकिस्तान के साथ मेरा क्या ताल्लुक है? इवन आपके नक्शे में मौजूद नहीं है तो हम कैसे कहेंगे जी हम पाकिस्तानी है? जो वहाँ जाके आए हैं उनका कहना यह है कि वहाँ बहुत सारी चीज़ों पे हुकूमत ने सब्सिडीज़ दी हुई। लद्दाख करगिल के लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना वो इंडिया की हुकूमत उनका ख्याल रखती है, तभी तो वो लोग जो है ना वहाँ आवाज़ें नहीं उठती है। तो मुझे ये लगता है कि ये सिर्फ और सिर्फ बल्तिस्तान में मजहबी तनाव को बढ़ाने की एक साजिश है पाकिस्तान गवर्नमेंट का, क्योंकि मुझे ये लगता है कि अगर जो ऐसे सिचुएशन में ना डालेंगे तो वहाँ के लोग डेवलपमेंट को लेकर, उनकी हुकूक को लेकर, इन सारे चीज़ों को लेकर बात करेंगे। तो इस चीज़ों को दबाने के लिए वो आप मजहबी तनाव पर आ गए हैं। जहाँ तक आप बखूबी जानते हैं, हम यहाँ हिंदुस्तान में चंद्रयान 3 अभी लॉन्च किया है, तो हम चांद को भी जांच रहे हैं, मार्स पर पहुँच गए हैं मंगलयान के थ्रू, लेकिन वहाँ पे हालत उतना ठीक नहीं है। तो इन सारी चीज़ों के ध्यान आवाम की जो इन चीज़ों के ऊपर ध्यान है उसको हटाने के लिए वो ऐसे टैक्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं कि वहाँ किसी एक मजहब को नीचा दिखाओ, उनको कमजोर करो। और हाल ही में सेवानिवृत्त आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं और सहायिकाओं ने सीटू के बैनर तले अनंतनाग में विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार पर उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया। प्रदर्शनकारी महिलाओं ने कहा कि उन्होंने लंबे समय तक आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में लोगों की सेवा की है और सरकारी स्तर पर उनसे कई तरह की नौकरियां ली हैं, लेकिन उनकी सेवानिवृत्ति के बाद उन्हें कोई पेंशन नहीं दी जा रही, जबकि उनके एरियर का भुगतान नहीं किया जा रहा है। लेकिन इश्यू ये है, अगर 40 साल उसने सर्विस की है, चाहे वर्कर है चाहे हेल्पर है, तो उसको बिल्कुल कुछ मुआवजा नहीं दिया है। बल्कि आजकल ट्रेंड चला है हर डिस्ट्रिक्टों में, क्योंकि पिछले 5 सालों से एक आंगनवाड़ी वर्कर मोबाइल फ़ोन चलाती थी डिपार्टमेंट की तरफ से। रिचार्ज उसने अपने जेब से 3 साल से दिया है। रिचार्ज उसने अपने जेब से दिया, वो पहले उसको दे दे, तब जाके हमारे फ़ोन वापस वर्कर्स करेंगे। दूसरा, अगर रिटायरमेंट पॉलिसी इम्प्लीमेंट की है यहाँ जम्मू कश्मीर में, लेकिन आप देख रहे हैं सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर भी है कि एक आंगनवाड़ी वर्कर हेल्पर को उसको ग्रेजुएटी दे, उसको पेंशन दे। अगर बाकी स्टेटों में आसाम है, गुजरात है, बाकी पांडिचेरी है, अगर वहां पर ये ऑर्डर इजरा हुआ है, इम्प्लीमेंट हुआ है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इम्प्लीमेंट हुआ है, लेकिन जम्मू कश्मीर सरकार क्यों टस से मस नहीं हो रही है? मोदी जी को मैं कहना चाहती हूँ कि हम गरीब घरों के से हैं, हम गरीब घरों से हैं। मुझे पता है मोदी साहब खुद गरीब घर से ताल्लुक रखने वाला था, मगर जिस वक्त उसने ये आर्डर निकाला, मोदी सर को ये पता नहीं उधर कश्मीर में क्या हालात है। उधर कश्मीर में 89 से क्या ऐसे हालात है, हम कैसे हालातों में जाते हैं। इलेक्शन ड्यूटी प्लस फॉलो ड्यूटी, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम, तालीम पढ़ो, बेटी को बचाओ बेटी को पढ़ाओ, फिर सब उम्र के औरतों को उसने कुंबे में फेंकी। और इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKLH पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।